Hello everyone, I'm Simran Dawan. So welcome in my series 3 of EMT chapter number the method of images. In my this video, I'm going to solve few numericals of method of images that is very important for CSIR net. It will clear your concept clarity about the numericals, how which type of numerical is asked in question in exam. Okay, so let's start with the numericals. Okay, now before going to start, I'm just telling you, I'm just taking one more example, and I'm going to analyze how many types of question can be asked from this type of particular example. So question number one here is, so let's see, we have some plane. Suppose this is my plane, this is my plane. Okay, suppose, let us suppose that this is our plane, xy plane, that is our conducting plane. For conducting plane v equal to 0, that is potential at every point will be 0. So suppose at this point we have z-axis. At this point we have z-axis. Suppose here we have charge q, that is at distance 0, 0, d. This is at distance d. Here we have another charge. That charge will be, suppose, let it will be minus q. Okay. So it will also at distance 0, 0, d from that particular plane. This is where this its value is d. It also d. It will also d. So अगर हम बात करें कि हम जो कंडक्टिंग प्लेन है, दैट कंडक्टिंग प्लेन वो हमारे पास क्या एक्ट करेगा, वो हमारे पास एक्ट करेगा एज अ मिरर. So here we have charge minus q due to this, that will be at distance 0, 0, minus d. अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे this its mirror image will be plus q, but that distance will be d apart from that along y axis, along x axis, because it is along x axis, its value is equal to 0. Here you have d, here you have minus of d. That is the particular main thing that you have to know, that this distance will be d here. Clear? Because this will be your d length apart. Okay, fine. This is our clear figure. So now the first question you have to solve from this is question number 1. Find force on charge q. कहते q पे charge calculate करो. Okay. So now force on charge q, that means force on charge q will be due to the, will be due to this charge, will be due to this charge, will be due to this charge. Suppose it will be F1 due to minus q charge, it will be F2 due to minus plus q charge, it will be F3 due to minus q charge. F1 due to minus q charge in the region z greater than 0, F2 due to plus q charge z less than 0. Similarly F3 क्या है, force है due to minus q charge in the region z less than 0. Okay, fine. अगर हम F1 की बात करें, F1 will be this, it will be distance what apart, d apart. What you get, F is equal to k q minus q over 2d square in the distance z cap, plus what will be F2, F2 will be k q into q. Now what will be the distance between this will be our distance. Okay, fine. So its total distance will be our 2d, this distance will be d, this will be your d square plus 2d square. So what you get, d square plus 2d square in the direction of d j cap plus 2d k cap, over what you get, its square, and here you get d square plus 2d square plus F3 will be what, k q minus q over d square into minus z cap. That will be your force. Now the next thing is what, how you can, what will be the value of this. Now total force F will be equal to k q minus q over 2d square z cap plus kq plus q. Over here you get d square plus 2d का whole square का 3/2 in the direction of dj cap plus 2d cap
plus kq minus q in the direction of minus z cap over d square. Clear here? This will be in the region of z minus and this will be in the region of z greater than. Okay, this is our first question. Question number 2 I am left for you. Find force on charge minus q. Similar to question 1, this is your question 2 homework. If you find any difficulty in solving this question, just drop comment. I will solve it in my next video. Okay, that means you have to calculate force on this charge. Force on this charge will be due to this charge, will be due to this charge, as well as will be due to this charge. So just similar to question number 1. Clear? Now just go to question number 2. Now the question number 3 is find energy stored, similar figure, in रीजन z ग्रेटर देन 0. तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर जब हमने लास्ट टाइम किया था, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द चार्जेस, वी हैव टू सम अप ऑल द चार्जेस. बट जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने, वी हैव टू ड्रॉप 1/2 बिफोर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ पर्टिकुलर रीजन. दैट मीन्स हाफ फॉर, मैंने बोला था कि हाफ फॉर दिस रीजन and half for this reason. So you have to just drop this value. Okay, so write down potential energy will be equal to 1/2 kq q over 2d plus kq over root 5d. You have to calculate it. This is your home. Energy is equal to potential energy kq q1 q2 by distance r. That is our potential energy. Similarly, it will be equal to kq minus q by distance d plus kq minus q by distance. This will be our value of energy due to charge plus q. This will be value of energy due to charge minus q. So this is the basic k minus q into minus q over root 5d plus k q minus q over 2d. That will be the answer. अगर हम इनको solve करेंगे, when we solve this value, you get kq square by 2d 2 by root 5 into 1 minus 2. This is your homework to solve this. Any difficulty you can drop me comment. So you will get 1/2 kq square by d 2 by root 5 minus 3. How I am getting this? This will be due to plus q charge and this will be due to minus q charge. Clear? So you have to just solve this, make practice of these formulas, because these can be these formulas you have done in your previous classes. Okay, previous classes mean this is my recorded video for my session, that means for my particular course. So my students have done this. If you have any doubt, please drop your comment. This is your potential energy formula. The next is work done to bring, question number 4. Find work done to bring q and minus q from infinity. That is the next question number 4 for similar figure. See students, we have this. अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है. इसके मिरर इमेज करके हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया. इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बना तो प्लस क्यू चार्ज हो गया. तो ये भी डिस्टेंस डी पार्ट है, ये भी हमारे पास कितना डिस्टेंस डी पार्ट है. अगर हम बात करें कि कितना वर्क डन आएगा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, फिर वॉच माई लास्ट वीडियो, हियर इज क्वेश्चन नंबर 7. okay, that is work done in bringing charge. In my question number 7, that particular answer is value of your work done here. Go and watch method of images video 2. Okay, for this answer. Okay, now the question number 5. Question number 5 is find potential at, similar question,
Similar figure, find potential at 0 d by 2 comma d. Now let's see. अगर हम यहाँ पे बात करें, this is here we have z axis, here we have charge q and this charge will be here at minus q, that is 0 0 d. अगर हम d by 2 की बात करें, इन दोनों के बीच में d by 2 will be sometimes here, somewhere here 0 d by 2 d. अगर similarly अगर यहाँ पे हम बात करें, here we have its mirror image, that is 0 d minus d. Here its mirror image, that will be at 0 0 d minus d. Okay, here is our conducting plane xy, that is conducting या तो potential क्या होगा इस इधर, वो हमारे पास होगा 0. ओके, नाउ अभी जो पोटेंशियल होगा इन सभी, सपोज करो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, इसका पोटेंशियल V4 है. जो पोटेंशियल इस डिस्टेंस पे होगा वो सभी पोटेंशियल के कारण होगा. सो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. जब भी हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अगर हम कंडक्टिंग प्लेन की बात करें, उधर तो हर पॉइंट पे 0 है, लेकिन अब हमने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सॉल्व करनी है. उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल चार्जेस जहां पे चार्ज है उसके पोटेंशियल का क्या होगा, सम. सो इट विल बी इक्वल टू kq by distance will be your d by 2 plus k minus q, distance will be also here d by 2. Similarly for this charge k minus q, it will be equal to d square, because you have to calculate this value, d square by 4 plus 4d square plus it will be equal to kq. You have to value for this, you have to solve this value, sorry, that will be due to this charge here, it will be equal to kq over root d square by 4 plus 4d square. Clear? That will be your value. So this is our total potential here. अगर हम इनको solve करें, net potential cancelled out, potential will be 0. Conducting plane का अगर हम बात करें तो potential क्या आ गया हमारे पास, 0. Plus charge minus cancel, plus minus cancel out. So answer will be here 0. That is our question number 5. अभी हमने potential निकाल लिया. Next step will be electric field. Now find electric field at distance 0 by d by 2 d. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, kq by r square, that is our value of electric field. Okay, so now what you get in particular direction r cap. So electric field will also due to individual charges. So electric field E1 plus E2 plus E3 plus E4. So what is the value of E1? kq by distance is your d by 2 का whole square in the direction of y cap plus k minus q over d by 2 का whole square in the direction of minus y cap plus k of minus q over 4d square. Similar value that we have solved in question number 1. 3 by 2. Here you have d by 2 y cap plus 2d z cap plus it will be equal to kq over 4d square plus d square by 4 into what you have minus d by 2 y cap plus 2d z cap. That is the value of electric field. When we solve this value, you will get electric field is equal to 8 kq. When we solve this, when I'm going to solve this value, minus minus plus, so I'm getting 8 kq over d square y cap plus minus kq dy cap. This is cancelled out over 4d square plus d square by 4, 4d square plus 3d by 4 का 3 by 2. That will be the particular value of electric field. So this is my question number 6.
And for question number 7, any doubt? Drop your message in comments. स्टूडेंट, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जब हम मेथड ऑफ इमेजेस यूज करते हैं, तो हमारे पास जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो हमने हमेशा अपने माइंड में एक क्लैरिटी बनाओ कि जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पर्टिकुलर ड्यू टू ऑल द चार्जेस। एक चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दूसरे के कारण कितनी आ रही है, तीसरे के कारण कितनी आ रही है, तो उनका सबका जो सम होगा दैट विल बी आवर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बिकॉज हमने उस पॉइंट पे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 विल बी हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड, हाउ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड on r that is far away from charges। देखो बच्चे, अगर हम बात करें, अगर एक सिंपल चार्ज पड़ा है दैट इज अवर मोनोपोल। अगर हम मोनोपोल की बात करें, मोनोपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई। ठीक है। अगर हम डायपोल मूवमेंट की बात करें, बिकॉज अवे फ्रॉम चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो भी हमारे पास कितनी होती है, 0। अगर हम क्वाड्रोपोल मूवमेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक चार्ज बन रहा है यहाँ पे -q, इसका मिरर इमेज यहाँ पे, इसका मिरर इमेज, लाइक वी हैव द वैल्यू ऑफ क्वाड्रोपोल। एंड फॉर क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली होती है r⁴। तो यहाँ पे 4 चार्जेस की बात हो रही है, यहाँ पे मोनोपोल की बात नहीं हो रही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज, दिस इज द क्वेश्चन, कि जैसे जैसे चार्ज हमारे पास अवे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रही है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड एग्जाम्पल। अभी इस एग्जाम्पल के मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ली थी तो मैंने उसके 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ फॉर दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व 1 एग्जाम्पल, टू क्वेश्चंस फॉर दैट। सपोज करो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी, हमारे पास चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा, इज एट डिस्टेंस 0, 0, d along x axis। हम कहां पे बात कर रहे हैं, along x axis। so find v at point p x y z। b क्वेश्चन है, find इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p x y z। ओके। नाउ अगर हम बात करें कि इनफाइनाइट वायर है, उसके हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 0, 0, d, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें, ये हमारे पास सपोज करो इनफाइनाइट वायर है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस है, यहाँ पे वाई अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कौन हमारे पास ये प्लेन बन गया, दैट मीन्स वाई जेड प्लेन। अलोंग एक्स एक्सिस मीन्स वाई जेड प्लेन। ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज आवर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर हम इधर प्लस लैम्डा है तो हेयर विल बी योर माइनस लैम्डा। क्लियर? ये अगर हम कंडक्टिंग प्लेन सपोज करें इसको, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी हमने पोटेंशियल भी निकालना है और उसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सपोज करो हमारे पास चार्ज Q पड़ा है, या उसकी जो डेंसिटी लैम्डा है, वो हमारे पास जो पॉइंट कहाँ पे, 0, 0, d पे। क्लियर? तो यहां से लेके अगर हम इसका मिरर इमेज विल बी हियर, अगर ये प्लस लैम्डा है, हियर विल बी योर माइनस लैम्डा, तो दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू। दिस विल बी डिस्टेंस, सपोज करो r2 है और यहाँ का कितना मान लो r1 है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो फिगर विल बी लाइक ऑफ दैट फॉर्म। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फिगर अगेन। सपोज करो suppose this is my plane
उन्होंने क्या बोला, एक्स एक्सिस की बात, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वाई जेड प्लेन। सबसे पहला कंसेप्ट तो यहाँ पे आ गया, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट वाई जेड प्लेन। और उस पे उन्होंने क्या बोला, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो अगर हमारे पास वाई जेड प्लेन है, दिस इज आवर एक्स प्लेन, तो यहाँ पे पोटेंशियल विल बी जीरो बिकॉज कंडक्टिंग प्लेन है। अगर ये हमारे पास प्लस लैम्डा, हियर विल बी माइनस लैम्डा बिकॉज हम इसकी मिरर इमेज करेंगे। और सपोज करो दिस इज एट डिस्टेंस 0,0 गिवन है, तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो हमारे पास एक्स वाई जेड पे है, पॉइंट पी पे। सिमिलरली यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा, 0,-t। अगर हम यहाँ सपोज करो यहां से लेके डिस्टेंस r1 है और यहां से लेके डिस्टेंस कितना बना हमारे पास r2। अगर हम इधर वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा r1 कैप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी r2 कैप की वैल्यू। क्लियर, दैट विल बी आवर r2। क्लियर, ये हमारे पास पूरा फिगर। अब हमने अगर बात करें अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, तो 0,0,d होगा ही नहीं। अलोंग एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे भी हमारे पास x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। क्लियर, दैट विल बी आवर मेन फिगर कि हमारे पास काम क्या हो रहा है। चलो अगर हम पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल अगर हमने निकालना है इस पॉइंट पे, दैट इज पर्टिकुलर ड्यू टू दिस एज वेल एज दिस लाइन चार्ज, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, ए है हमारे पास, पोटेंशियल इज इक्वल टू v1 प्लस v2। क्लियर, and v1 is due to plus lambda and v2 will be due to minus lambda। ओके, सो सिंस अगर हम बात करें लाइन चार्ज है कंपैटिबल है गॉस लॉ के कारण, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज पर्टिकुलरली बाय फ्रॉम गॉस लॉ। so सिंस लाइन चार्ज इज कंपैटिबल, अगर जो लाइन चार्ज है वो गॉस लॉ के साथ कंपैटिबल है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गॉस लॉ हियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने पहले हम हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट v1, दैट मीन्स ड्यू टू प्लस लैम्डा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आवर व्हाट, 2k lambda over r1 into r1 कैप, दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। हमारे पास r1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 i कैप प्लस y j कैप प्लस z माइनस डी के कैप, यही बनी। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है 0,0,d और यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसकी वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड, तो 0 आई कैप, देखो यहाँ पे हमने x माना था, x माइनस एक्स 0, y माइनस 0 0, सॉरी y माइनस 0 y, एंड z माइनस d कैप। here what you have x minus x I cap plus y minus 0 j cap plus z minus d k cap, that will be your r1 value। क्लियर है अभी, r1 वेक्टर, ठीक है। r1 का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास क्या आएगी r कैप, दैट मीन्स वाई जे कैप प्लस जेड माइनस डी के कैप। क्लियर है भी यहाँ तक, r1 का वेक्टर कितना आएगा उसकी वैल्यू को मैग्नीट्यूड कर दो, तो ओके फाइन। नेक्स्ट विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा ओवर y स्क्वायर प्लस z माइनस d का होल स्क्वायर इंटू r1 कैप। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है ई वेक्टर डॉट dl। अब वो लिमिट होगी, लिमिट अगर हम सपोज करो कि हमने जो पहला यहाँ पे प्लस लेमडा था उस पे ए पॉइंट है, ये हमारे पास पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, हियर वी हैव 0,0,d, दैट मींस इट विल बी फ्रॉम ए टू पी, somehow a to p। so what you get, minus e, just put value of e, you get a to p minus of 2k lambda over under root of y square plus z minus d का whole square into r cap into dr into r cap, because dl vector must be equal to r cap into dr। क्लियर, अब हम बात करें ए हमारे पास हियर क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। जब भी जो लोअर लिमिट होती है वो हमारे पास क्या एक्ट करता है कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस पोटेंशियल दिस विल सॉल्व विथ व्हाट वी गेट, वी विल गेट minus 2k lambda times ln of z r from a to p, ln of r from a to p, that what you get 2k lambda ln of a by radius of p।
What will be RP? RP will your, we get 2k lambda ln of a over under root of y square plus z minus d का whole square. That will be our answer. That will be our R1 here. Okay. Clear है? Similarly, अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो V, potential at V2, that will be equal to, अब हमने V2 की वैल्यू निकालनी है. उस V2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 2k of minus lambda into R2 cap over R2. Now R2 cap की वैल्यू क्या आएगी? That it goes from 0 x comma 0 comma minus t to x comma y comma z. Here you get R2 cap is equal to y j cap plus z plus d k cap. That will be value of your R2 cap. Clear? सिमिलरली सेम प्रोसीजर है जो हमने R1 E1 के लिए निकाला है, जिससे हमने V1 निकाला है. सिमिलरली प्रोसीजर हमने इसके लिए कैलकुलेट करना है. देखो हमने E1 और E2 भी निकाल लिया. इसके साथ जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ में हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती है, देन वी आर कमिंग टू पोटेंशियल. So you will get V2 is equal to minus E vector dot dl minus of minus 2k lambda over r into r cap into dr into r cap. Okay, I'm just taking this as a for like take इसको मैं ऐसे इसलिए ले रही हूँ कि आपके लिए easy हो जाए कि हमने वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है. So this will be from A to P as it is, जैसे हमने पहले किया. But here we have B to P. Okay, so what you get? Minus minus plus, so you get 2k lambda ln of P by A. अगर हम यहाँ पे माइनस आउट ले लें, माइनस 2k लैम्डा, फिर दैट विल बी इक्वल टू ln ओवर a बाई p. जो हमारे पास p की वैल्यू है दैट विल बी सिमिलर टू दैट इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2k लैम्डा ln ऑफ a ओवर अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z प्लस d का होल स्क्वायर. क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालना है. दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2. वो जो V1 और V2 हमने कैलकुलेट किया, ये यहाँ से हम V2 की वैल्यू पुट करेंगे, और जो लास्ट हमारे पास इमेज थी वहां से हम V1 की वैल्यू पुट करेंगे. तो हमारे पास पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, सो इट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा ln ऑफ a ओवर y प्लस माइनस d का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस 2k लैम्डा ln ऑफ a ओवर y स्क्वायर प्लस z प्लस d का होल स्क्वायर का अंडर रूट. दैट विल बी आवर पोटेंशियल. अगर हम इसको सॉल्व करें टेकिंग 2k लैम्डा कॉमन, तो हमारे पास ln a बाई ln b, सो यू विल गेट रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z प्लस d का होल स्क्वायर ओवर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z माइनस d का होल स्क्वायर. दैट इज योर पोटेंशियल. सिमिलरली यू हैव सॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन आए और उसमें उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए कि हमारे पास, चलो सपोज करो दिस इज योर आंसर, you have solved electric field E1 plus E2, just put value of EM1 and E2, that will be your answer of electric field. अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का, कि आपके पास 2 सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है. ओके, जो Q है, Q इज एट एंगल बाय सेक्शन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. फाइंड नंबर ऑफ इमेज चार्जेस. कि इमेज चार्जेस के नंबर कैलकुलेट करो. देखो बच्चे, 2 सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, अगर ये वैल्यू वर्ड ही आ गया, दैट मींस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बाय मेथड ऑफ इमेज. ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? देखो हमारे पास कुछ नहीं गिवन. हम सपोज करें दिस इज आवर y प्लेन, दिस इज आवर z प्लेन, दिस इज आवर x, दैट इज आवर x एक्सिस, वी आर टॉकिंग अबाउट yz प्लेन. तो यहाँ पे अगर हम बात जाएं, दिस विल बी आवर माइनस y एक्सिस, दिस इज आवर z. सपोज करो कि हमारे पास जो वैल्यू है, this is our charge q here, that is at 0 d distance. Here you have charge minus q, that is at 0 minus d d. Why I'm taking? Because they are talking about 2 semi infinite conducting plane. So इसके कारण हमारे पास जो वैल्यू बनेगी माइनस q के कारण प्लस q बनी, और यहाँ पे माइनस q आया, that will be at 0 d minus c.
Similarly, here you have 0, comma, minus d, comma, minus d. So that will be your figure here. अगर हम बात करें यहाँ पे कि नंबर ऑफ इमेजेस की बात, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360 बाई थीटा माइनस 1. तो देखो 360 बाई 90 माइनस 1, यू कट इट, यू गेट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सिंपली आपके पास 3 इमेजेस बन रही है यहाँ पे. जस्ट टेक पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, you will get the answer of number of images. So this is your answer. Now students, I am done with my topic and I am also done with the questions on basis of conducting plane. I am done with my question for conducting plane. Now I am going to solve or have to describe some tricks for conducting sphere. मेरा conducting plane वाला part खत्म हो गया. I'm going to tell you about conducting sphere. Okay. So for conducting sphere, now image problem. Write down topic. बच्चे अगर आप इसकी बात करो कि मैं इस पे डीप में जाऊं, तो अगर आप डीप में जाओगे, डीप में जाना दैट इज गुड, बट अगर हम CSIR की बात करें तो CSIR के अकॉर्डिंग हम करें तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू याद करें, वो ज्यादा बेटर है. सो दैट कि आपको क्रिस्प पता हो कि इसका आंसर ये है, आप कंफ्यूज ना हो. सो इमेज इंक्लूडिंग ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर. ओके बच्चे, पहले हमने प्लेन किया था, उसका हर जगह पोटेंशियल 0 था. अगर हम एक स्फीयर कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है, मतलब इसका पोटेंशियल तो इसका भी 0 होगा. सपोज करो कि इसका जो सेंटर है O और इसका रेडियस कितना है R. अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होगा, इमेज चार्ज. सपोज करो कि हमारे पास कोई A पॉइंट पे हमारे पास चार्ज पड़ा, दैट इज Q. उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, दैट इज आवर Q डैश विच इज एट डिस्टेंस B. तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, ट्रिक है, फॉर्मूला समझो. यू हैव कैलकुलेटेड इन योर MSc पार्ट. So here image formed will be equal to, that is our Q dash will be equal to minus R by A into Q. That will be our image form. And the next important thing is location of image. बच्चे this is particular trick, आपको as it is इसको याद करना होगा. Image charge will be B square is equal to R square by A within the sphere. Okay, everything within the sphere will be due to this Q and Q dash charges. जो भी sphere में होगा वो ये जो Q charge और Q dash charge उसकी image बनी है उसी के कारण होगा. So everything within the sphere is due to Q and Q dash charge. Clear है? This is our new topic and it is very easy कि अगर आप इन सबको क्रैम कर लो कि इनकी वैल्यू ये आएगी, बिकॉज एज इट इज ये यूज होगा और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व है. तो अगर हम एक और इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पे, नोट, इफ पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर हमारे पास जो स्फीयर का सरफेस है बी सम कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू सपोज करें कि उसकी वैल्यू v इज इक्वल टू v नोट, हम सपोज करें सरफेस ऑफ स्फीयर v सम कांस्टेंट दैट इज v इक्वल टू v नोट. सो इंस्टेड ऑफ 0, हम 0 नहीं सपोज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मान रहे हैं. देन हम क्या करेंगे, एक एडिशनल चार्ज q पुट करेंगे. देन वी पुट सम एडिशनल चार्ज q at the center of sphere. So हमारे पास जो फिगर था ये वाला, that is at distance 0. Here our image, this is at charge q, this will be at distance a, this will be at distance b. अगर हम सपोज करें कि जिसका पोटेंशियल है वो ग्राउंडेड नहीं है, अगर वो ग्राउंडेड नहीं है दैट मीन्स उसका जो पोटेंशियल की वैल्यू है सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू गिवन है, सपोज करो दैट इज इक्वल टू v नोट, v इज इक्वल टू v नोट, हियर v नोट इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, चार्ज पुट करेंगे q हियर.
तो वो v नॉट की वैल्यू आएगी 1/4πε0 q बाय r। ओके, एंड q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4πε0 r v नॉट। क्लियर? तो हमारे पास जो q डैश की वैल्यू थी -r/a/q एंड b इज इक्वल टू r²/a, तो उसमें हम पुट करें तो v नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4πε0 q बाय r, और q की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या आएगी 4πε0 r। ये हमें एज इट इज याद करना होगा, दैट इज आवर फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस, अगर हम एडिशनल चार्ज q, अगर हमारे पास पोटेंशियल गिवन है तो उस पोटेंशियल के थ्रू हमारे पास q की वैल्यू कैसे आएगी, बिकॉज हम नया चार्ज प्लेस करेंगे। ये इमेज चार्ज की कैसे आएगी और उसका डिस्टेंस कहाँ पे इमेज पड़ी है उसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी। क्लियर है? दिस इज क्रिस्प फॉर्म। आई एम नॉट गोइंग इट इन डीप, आई एम जस्ट टेलिंग यू द क्रिस्प फॉर्म की कितना याद करना है और कितना ही एग्जाम में आएगा। तो इक्वेशन अगर हम ले on this topic, a point charge is placed at distance 2r origin से, from the origin, find number 1 potential at p 0, 2r, 3r. Second is your electric field at p, that is 0, 2r, 3r. Number third, find f on charge q। अच्छा, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये स्फीयर बोला placed at 2r distance from region of conducting sphere। ओके, तो सपोज करो बच्चे दिस इज अवर कंडक्टिंग स्फीयर, फिर पोटेंशियल इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, उस स्फीयर का पोटेंशियल 0 है, ये ओरिजिन है, तो यहां से हमारे 2r डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज पड़ा है q। क्लियर? सपोज करो दिस इज अलोंग आवर y एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस। तो जब हमेशा एक बात याद करना, नोट all questions will ask for r greater than capital R। ठीक है? What is small r? Small r is your Gaussian surface radius। So here अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास एक चीज है कि Q इज इक्वल टू व्हाट 2r। चार्ज हमारे पास कितने डिस्टेंस पे पड़ा है 2r पे, तो Q डैश की वैल्यू कितनी है -r/q इंटू a, दैट विल बी आवर Q डैश। Okay, similarly, if we put A is equal to what 2r, our charge will be reduced to -q/2। Similarly, location is equal to r²/a is equal to r²/2r। What you get r/2। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास ओरिजिन है और यहाँ पे जो हमारे पास q डैश आया वो q डैश क्या हो गया q/2, और यहाँ पे जो q की वैल्यू है दैट विल बी एट डिस्टेंस 0, 2r, 0, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस। हमने अपनी तरफ से सपोज किया। सपोज करो जो वो p पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे आएगा 0, 2r, 3r। हाउ यू कैन से कि इतने डिस्टेंस पे आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे अगर रेडियस भी तो हाफ हो रहा है, लोकेशन हाफ हो रही है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट के कारण, तो दैट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी योर होमवर्क। देखो चलो आई विल डू फॉर यू। पोटेंशियल विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या आएगा v1 प्लस v2। सो पोटेंशियल की अगर हम बात करें, पोटेंशियल विल बी ड्यू टू चार्ज दिस, दिस विल बी योर होमवर्क। एनी डाउट? ड्रॉप कमेंट। Okay, so now the force, I'm going to tell you the third part, force on charge q। अगर हम force की बात करें, force will be what k q into q/2, यही हमारे पास दूसरा चार्ज आया, और direction will be our y axis। So here is 3r, here is 2r, here is our distance will be your
0 2r, 0, here you have 0. अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें, डिस्टेंस क्या आएगा दोनों का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3r/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी योर फोर्स. स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई होप कि आपको इसका कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ. अगर आपको ये नहीं समझ आया, प्लीज गो टू फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो को दोबारा देखो. मे बी यू विल फाइंड सम न्यू थिंग्स, बिकॉज एक बार समझ नहीं आया, दोबारा देखोगे उसका क्लैरिटी होगा. सो आई होप कि आप लोगों को समझ आए, बिकॉज मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ आए ये सब कुछ. सो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इसमें कुछ भी लगा है कि आपको ये कंजर्वेटिव वीडियो फॉर यू, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स बाय सिमरन. थैंक्स स्टूडेंट्स. Wish you good luck.